Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads once again, guys. Having discussed the MCQs of Laburnum Top, we are once again in front of you to discuss MCQs of Landscape of the Soul, the last chapter of class 11th English. That is going to be the part of your term 1 examination. Because we have already discussed the writing section with all of you. We have discussed the MCQs of speech writing, notice writing, article writing, classified advertisement, and much more. If you want to watch the videos, you can go to our playlist, you can go to our channel and watch all the videos. Before we move on, we would request you to subscribe to our channel. Do share this video with others as well. Do press the bell icon so that you can get the timely updates. Chale, let's move on to the first MCQ. First multiple choice question of the landscape of the soul. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, cloud floating in an immense sky, men on hilly paths, bird in flight. Look, sire, said the painter. In this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened. So guys, this is your extract number 1, wherein एक पेंटर के बारे में बताया गया that how beautifully he had created a painting. He wanted the emperor to see it. तो उस केस में क्या हुआ ये आपको देखना है. तो पहला MCQ यानी फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज क्वाइट सिंपल. नेम द चैप्टर. इट इज़ नॉट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. लैंडस्केप ऑफ द सोल है. डिस्कवरिंग ट्रुथ भी नहीं है. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल टुगेदर, ये भी नहीं. गॉट इट. सो हु इज द ऑथर ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सोल आपको बताना है. AR विलियम्स नहीं है गाइस. खुशवंत सिंह भी नहीं है. मार्गा मिनको भी नहीं है. AR विलियम्स आपके डिस्कवरिंग ट्रुथ के हैं. खुशवंत सिंह आपके द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के हैं. मार्गा मिनको आपकी द एड्रेस की हैं. और नैथली ट्रोवरे जो हैं गाइस, ये हैं आपके ऑथर किसके? लैंडस्केप ऑफ द सोल के. सो विच इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4. Why had the master hidden his work? मास्टर ने अपना काम क्यों छुपा के रखा था? For he wanted everyone to come and see his work? No. For he wanted emperor only to come and see his work? Yes. For he wanted his wife to come and see his work? No. So none of these नहीं होगा because second is the correct option. Got it? Let's move on to D. Find out the synonym of the word immense. Immense का is huge होता है, बहुत बड़ा होता है. तो huge is right, large is right, monstrous is right. तीनों ऑप्शन ठीक है. So fourth option जो होगा that would be all of these. So right answer क्या हो जाएगा guys इसका? All of these हो जाएगा. Let's have a look at the right answer. सारे answers match कर लेते हैं. Landscape of the Soul, Nathalie Trovere, for he wanted emperor to come and see his work. All of these. Got it? Let's move on to second extract guys. The inside is splendid. Beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and it astonished before emperor could move or utter a word. The painting had vanished from the wall. Not a trace of Wu Daozi's brush was left, and the artist was never seen again in the spot. So guys, ये स्टोरी है कि पेंटर गायब हो गया था, उससे रिलेटेड एक्सट्रैक्ट है. तो उसका पहला क्वेश्चन है हु वॉज वू डाउजी. वू डाउजी कौन था गाइस? वॉज ही अ कारपेंटर? नो. वॉज ही अ पेंटर? यस. वॉज ही अ वुड कटर? नो. वॉज ही अ प्लम्बर? नो. सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन गाइस? ऑप्शन नंबर सेकंड. What happened before the emperor tried to sneak into the cave? Guys, I would like to stop you here. अगर आपको इसकी समरी पढ़नी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो you can visit a website that is www.brainylats.in. इन दैट वेबसाइट आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा ऑन द राइट हैंड साइड. आप जैसे ही डालेंगे लैंडस्केप ऑफ द सॉल, तो जो कंटेंट रिलेटेड है लैंडस्केप ऑफ द सॉल से, चाहे वो MCQs हैं नोट्स फॉर्म में, चाहे वो समरी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, और LATQs आई मीन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, यू विल फाइंड एवरीथिंग. सो यू कैन विजिट अ वेबसाइट एज वेल, दैट इज brainylats.in.
सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड बिफोर द एम्परर ट्राई टू स्नीक इनटू द केव, क्या हुआ केव में एंटर करने से पहले? द पेंटिंग डिसअपीयर्ड, यस। अनदर पेंटिंग अपीयर्ड, नो। द पेंटिंग स्टार्टेड ब्लिंकिंग लाइट्स, नो। नन ऑफ दीज नहीं आएगा, तो विच इज द राइट ऑप्शन गाइस? ऑप्शन नंबर 1। Why did the painting disappear from the wall? For it was fictitious, no। क्या वो काल्पनिक थी? नहीं जी। For it was not being viewed and felt as was by the painter, yes। क्योंकि the emperor was not looking at the painting in the same way that was being viewed by the painter। इसलिए बोलते हैं कि उसके जो टैलेंट की थी वो वहाँ पर थोड़ा बहुत उसको एम्बैरसिंग लगा, उसके टैलेंट की कदर नहीं हुई, इसलिए पेंटिंग क्या हो गई? गायब हो गई। फॉर इट वॉज मैजिकल, नो। ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, तो विच इज द राइट ऑप्शन गाइस? ऑप्शन नंबर 2। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ स्प्लेंडेड। गाइस एंटोनिम बताना है आपको। एंटोनिम क्या होता है गाइस? ओपोजिट होता है, ऑपोजिट। लेट मी शो यू द ऑप्शंस। मैं आपको सारे ऑप्शंस दिखा देता हूँ एक बार, चारों के चारों ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर मुझे बताइए फटाफट जल्दी से कि विच इज द राइट ऑप्शन। स्प्लेंडेड का एंटोनिम क्या होगा गाइस? देखिए एस तो हो नहीं सकता क्योंकि एस खुद स्प्लेंडेड होता है। मैग्निफिसेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी स्प्लेंडेड होता है। टॉप नॉच भी नहीं होता। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग द राइट आंसर इज अनइम्पोजिंग। गॉट इट? चलिए एक बार देख लेते हैं आंसर्स क्या क्या है गाइस। क्विकली हैव अ लुक एट द आंसर्स ऑफ द 4 क्वेश्चंस। बिल्कुल अनइम्पोजिंग है। फॉर इट वॉज नॉट बींग व्यूड, ये भी ठीक है। द पेंटिंग डिसअपीयर्ड भी ठीक है। और कारपेंटर नहीं आएगा गाइस, ये टाइपिंग एरर है। राइट आंसर इज पेंटर। क्या थे वो? पेंटर थे। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन टू एक्सट्रैक्ट 3। थर्ड एक्सट्रैक्ट पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है थर्ड एक्सट्रैक्ट। In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metzys fell in love with the painter's daughter. The father would not accept a son-in-law in such a profession, so Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened. Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. एक और एक्सट्रैक्ट लिया गया है गाइस, एक्सट्रैक्ट जिसमें बात की गई है किसकी? क्विंटन मैथसीस की। जो बताया गया ब्लैकस्मिथ जो था, एक लोहार जो था, उसकी स्टोरी है कि कैसे वो एक स्टूडियो में एंटर किया था और वहाँ पर उसने एक फ्लाई बना दी थी विच सीम्ड एब्सोल्युटली ओरिजिनल। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है व्हाई डिड द पेंटर नॉट वांट टू एक्सेप्ट क्विंटन मैथसिट एज सन इन लॉ? क्यों नहीं करना चाहता था? ड्यू टू हिज कॉम्प्लेक्शन, नो। ड्यू टू हिज प्रोफेशन, उसके काम की वजह से। व्हाट वाज ही बाय प्रोफेशन गाइस? ब्लैक स्मिथ था। तो पेंटर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कैसे एक ब्लैक स्मिथ एक पेंटर की, जो एक आर्टिस्ट होता है, उसकी बेटी से शादी कर सकता है। तो उसके प्रोफेशन की वजह से वो उसको पसंद नहीं करता था और नहीं चाहता था कि वो उसका सन इन लॉ बने। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर भी हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या। ड्यू टू हिज रूड बिहेवियर, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कोई रूड बिहेवियर नहीं किया था। ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा। हाउ डिड द ब्लैकस्मिथ मैनेज टू कन्विंस द पेंटर? ब्लैकस्मिथ ने कैसे पेंटर को कन्विंस किया? विद हिज एक्सेप्शनल आर्ट, यस। विद हिज एक्सेप्शनल डांसिंग स्किल्स, नो। विद हिज एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी, नो। इन चीज़ों से वो इम्प्रेस नहीं हुआ था। जो उसने फ्लाई बनाई थी, एक मक्खी बनाई थी पेंटिंग के ऊपर, बिल्कुल ओरिजिनल लग रही थी। जो पेंटर था उसने उसको स्वैट अवे करने की भी कोशिश की थी, शू अवे करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो एक पेंटिंग थी, शू अवे कैसे होती? व्हाट डिड द ब्लैकस्मिथ पेंट ऑन द पैनल? ब्लैकस्मिथ ने क्या पेंट किया था? अ वैस्प, नो। अ ड्रोन, नो। अ फ्लाई, नो। अ फ्लाई, यस। अ बीटल, नो। तो उसने एक फ्लाई बनाई थी गाइस। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ? सेम बताना है आपको। अप्रेंटिस का, अप्रेंटिस क्या होता है गाइस? एक लर्नर जो काम सीख रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस। लर्नर, नोविस, रुकी, तीनों जो है अप्रेंटिस के सिनोनिम है। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन गाइस? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स। ड्यू टू हिज प्रोफेशन, विद हिज एक्सेप्शनल आर्ट, अ फ्लाई, ऑल ऑफ दीज करेक्ट। Let's move on to extract fourth. This concept is expressed as sanshui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe.
The mountain is yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm, and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist, and cool. The interaction of yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. Got it? तो कैसे आपको बताना है, इसके बेसिस पर यहाँ पर शेंशुई को इलाबोरेट किया गया है। शेंशुई के दो जो एलिमेंट्स है यांग और यिन, उनके बारे में बताया गया है। तो एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ ही लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप समरी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द माउंटेन इज यांग। माउंटेन का कंपैरिजन यांग से किया गया है, तो सिमिली नहीं हो सकता क्योंकि लाइक और एज नहीं है, मेटाफर होगा जी, पर्सोनिफाई नहीं किया गया, एलिट्रेशन का भी कहीं यूज नहीं दिख रहा, सो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस, मेटाफर, कंपैरिजन किया गया। व्हाट इज शेंशुई, शेंशुई क्या होता है गाइस, अ पेंटिंग, अ माउंटेन, और देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। वेट, वाटर, नन ऑफ दीज। तो शेंशुई क्या है गाइस, एक पेंटिंग होती है, पहला आंसर ठीक है मेटाफर, दूसरे का आंसर क्या है गाइस, शेंशुई क्या है, एक पेंटिंग है। पेंटिंग के दो पार्ट बताए गए हैं, पेंटिंग में दो पार्ट होते हैं, एक यांग और एक इन। यांग जो है वो मैस्कुलिनिटी को दिखाता है, और यिन जो है वो फेमिनिज्म को शो करता है। गॉट इट? यांग जो है वो हार्ड चीज़ों के लिए, यिन जो है वो सॉफ्ट चीज़ों के लिए। व्हाट डज यांग सिंबलाइज, यांग आ गया क्वेश्चन का, मैस्कुलिनिटी को सिंबलाइज करता है, फेमिनिज्म को नहीं करता, न्यूट्रलिज्म को भी नहीं करता, ऑल ऑफ दीज को भी नहीं करता। व्हाट डज शेंशुई रिप्रेजेंट, लैंडस्केप, सीनरी, माउंटेन, वाटर। एक पेंटिंग में जब ये तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें इसके अलावा और भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो वो क्या बन जाता है गाइस, शेंशुई बन जाता है। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन टू एक्सट्रैक्ट फिफ्थ एक्सट्रैक्ट पे बढ़ते हैं गाइस। What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of pranayam, breathe in, retain, breathe out. The suspension of breathe is the void where meditation occurs. The middle void is essential. Nothing can happen without it, hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape. Got it? तो बताया गया कि what is important in Chinese landscape and what is not. To name the chapter, it's quite simple, Landscape of the Soul. Who is the author of this chapter? कौन है guys? Nathalie Travere. आगे बढ़ते हैं, आगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following has been called the unpainted space in Chinese landscape? किसको बोला गया guys? यांग को नहीं बोला गया, यिन को नहीं बोला गया, मिडिल वॉइड को बोला गया है। तो द राइट आंसर इज मिडिल वॉइड। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। What has middle void been compared to? मिडिल वॉइड को किससे कंपेयर किया गया guys? योगा से। और अगर हम बोले इन शॉर्ट तो नाम भी लिया गया प्राणायाम, जो कि एक बहुत अच्छी योगिक प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, जिसमें हम ब्रीद इन करते हैं, उसको रिटेन करते हैं, देन वी ब्रीद आउट। तो ये प्राणायाम से कंपेयर किया गया। एक्सट्रैक्ट 6 देख लेते हैं गाइस। 6 एक्सट्रैक्ट में क्या है? Its 80-year-old creator director Neek Chand is now hailed as India's highest contributor to outsider art. The 15th issue, Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine, pioneer in outsider art publication, features Neek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary's issues cover. Where did Neek Chand create rock garden? Neek Chand ने rock garden को कहाँ बनाया गया? चंडीगढ़ में। If you ever get a chance to visit Chandigarh, guys, do not forget to visit that place. It is really one of the best places of Chandigarh. याद रखना guys, रॉक गार्डन नाम है उसका, वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है, एंड हु इज द क्रिएटर ऑफ दैट? नेक चंद। एज द नेम सो द वर्क, एज द नेम सो द वर्क, नेक चंद। गॉट द पॉइंट गाइस? What is outsider art? Outsider art क्या होता है? Art occupied with formal training? No. Art occupied without formal training? Yes. Art without skills? No. Skills तो होती है, none of these नहीं होगा. So I think the best option is art occupied without formal training. जब आप कोई ट्रेनिंग नहीं लेते लेकिन आप आर्टिस्ट बन जाते हो, कमाल के आर्टिस्ट बन जाते हो बिना ट्रेनिंग के, तो दैट इज कॉल्ड आउटसाइडर आर्ट। इसको रो आर्ट भी बोलते हैं गाइस, and it is also called art bread.
गॉट इट? बुक में गिवन है क्लियरली, आप गो थ्रू कर सकते हैं। विच मैगजीन हाईलाइटेड नेकचंद्स आउटसाइडर आर्ट? तो रो विजन नाम है उसका गाइस, क्लियरली गिवन है। रो होराइजन नहीं है, रो डिवीजन नहीं है। व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू आउटसाइडर आर्ट? तो आर्ट ब्रेट, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं गाइस, आर्ट ब्रेट है। गॉट इट? एक बार आंसर्स मैच कर लेते हैं इसके सारे फॉर द कंफर्मेशन। आर्ट ब्रेट है, रो विजन, ये सारे आंसर्स ठीक है। एक्सट्रैक्ट सेवेंथ गाइस। Around the time Dubuffet was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden, sculpted with stone and recycled material, is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. We have already discussed कि रॉक गार्डन कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। मैं आपको पहले ही एडवाइस कर चुका हूँ कि whenever you get a chance to visit Chandigarh, do visit this place. It is absolutely a seeing worthy thing, एक देखने लायक जो चीज़ होती है वो है। तो which poetic device has been used in untutored genius? फटाफट guys, I'm getting you 10 seconds, जल्दी से बताइए मुझे कि चारों में से कौन सा ऑप्शन है। ऑक्सीमोरॉन, पन, एंटीथीसिस, ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्विकली गाइस, क्विकली जल्दी से बताइए कि व्हाट इज द राइट ऑप्शन। क्विकली गाइस हरी अब बताइए कि अनट्यूटर्ड जीनियस, देखिए जीनियस होगा वो ट्यूटर्ड जरूर होगा, सीखा जरूर होगा। तो दोनों टर्म्स कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। सो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? पन गलत है, एंटीथीसिस गलत है, ट्रांसफर्ड एपिथेट राइट आंसर इज ऑक्सीमोरॉन। वेयर डिड नेकचंद क्रिएट पैराडाइज? किस पे बनाया था गाइस? ऑन अ पैच ऑफ, गिवन है गाइस, ऑन अ पैच ऑफ जंगल। तो ऑन ए शोर ऑफ आइलैंड नहीं आएगा, ऑन ए पैच ऑफ सिटीज लैंड नहीं आएगा, एक जंगल के पैच पर रिसाइकिल्ड मटेरियल से, रिसाइकिल्ड मटेरियल से एक एक चीज इकट्ठी की गई थी गाइस, सब कुछ इकट्ठा किया गया था, उन्होंने एक गार्डन बना दिया। दैट इज नोन टुडे एज रॉक गार्डन, जिसको किस नाम से जानते हैं? रॉक गार्डन के नाम से। नेक्स्ट वन, हाउ डिड नेकचंद क्रिएट अ पैराडाइज इन चंडीगढ़? कैसे बनाया? विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, विद द हेल्प ऑफ रिसाइकिल्ड मटेरियल, विद द हेल्प ऑफ क्रॉकरी एंड अदर ब्रोकन मटेरियल, सब कुछ यूज किया गया गाइस। स्टोन भी, मटेरियल को भी रिसाइकिल किया गया, क्रॉकरी का भी यूज किया गया, और भी टूटी फीटी चीजें जो टायर्स होती है, सिंक होती है, सब चीजों का यूज करके एक गार्डन बनाया गया है। उसमें झूले वूले सब कुछ है। तो राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, नेम द चैप्टर, दैट इज लैंडस्केप ऑफ द सॉल, रिटन बाय नैथली ट्रॉवर। लेट्स मूव ऑन, आगे देख लेते हैं अगर कोई एक्सट्रैक्ट है या नहीं है गैस। तो इसके बाद कोई और एक्सट्रैक्ट नहीं है, ये 7 एक्सट्रैक्ट थे गैस, वी हैव डिस्कस्ड ऑल 7 ऑफ देम। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस, यू गाइस हैव बीन सपोर्टिंग अस अ लॉट, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज ऑन डेली बेसिस, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, वी आर गेटिंग फीडबैक्स एज वेल, वी आर हैप्पी टू रिसीव फीडबैक्स। आप जो भी आपकी फीडबैक है, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, आप ज़रूर शेयर कीजिए। इफ़ हमें लगेगा कि इट इज़ रिक्वायर्ड तो हम उसको ज़रूर फॉलो करेंगे गाइस। सो दैट वाज ऑल अबाउट लैंडस्केप ऑफ द सॉल, अ ब्यूटीफुल चैप्टर रिटन बाय Nathalie Trovere. So that was all about it. Thank you very much for joining us. Have a nice day.